Welcome dear students, I am Avish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 5 class at STEM International. आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 जो कि MS Excel 2019 था उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे, MCQs देखेंगे, शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स और डिस्कशंस को भी देख रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। Section A. Pick the correct answer. Microsoft Excel 2019 is mainly used to perform calculations and organize data. Option C. Statement 2. A formula in Excel always starts with is equal to. Option C. Statement 3. Which symbol is used for multiplication in Excel formulas? Asterisk. Option C. Statement 4. Which function is used to add many values at the same time? Sum. Option D. Statement 5. Which function finds average of numbers? Option B. Average. Statement 6. Which function shows highest value? Max. Option C. Statement 7. Which function shows the lowest value? Min or minimum? Option D. Statement 8. Charts are useful because they help understand data quickly. Option C. Statement 9. Which chart is best for comparing marks of students? Option B. Column chart. Statement 10. Which chart shows the part of a whole? Option C. Pie chart. Section B. Write T for true and F for false in the given circles. Excel performs calculations automatically. True. A formula can contain number, cell, address, and operators. True. Some function is used to find average. False. Maximum function shows the smallest value. False. Chart helps present data clearly. True. Excel is useful for shopping list and fee records. True. Formulas do not change when values are updated. True. Because जो change हो रहा होता है वो आपके पास resulting value होती है, formula आपका same रहता है. Tables look better with proper formatting. True. Section C. Fill in the blanks. Statement 1. A dash is an instruction that tells the Excel how to calculate a value, a formula. Statement 2. The dash function is used to add many values, the sum function. Statement 3. The dash function finds average value of numbers, average. Statement 4. Dash shows the highest value in range of cells, max or maximum function. Statement 5. Dash charts are used to show parts of a whole, pie charts. Statement 6. Charts help us understand data clearly and neatly. Section D. Answer the following questions. What is Microsoft Excel? Microsoft Excel is a spreadsheet program used to enter data, perform calculations, organize information, and present data clearly. Question number 2. What is formula in Excel? A formula is an instruction that tells in Excel how to calculate a value. Question number 3. Write the syntax of sum function. Syntax of sum function includes n is equal to sign, bracket, start cell, colon, end cell, and closing bracket. Question number 4. Write one use of each. Average function. The average function is used to find the average value of numbers. Maximum function. Maximum function shows the highest value in the range given. Question number 5. Why are charts useful in Excel? Charts are useful because they compare values easily, help us understand data quickly, present information clearly. Question number 6. Write two uses of Excel in daily life. We can make mark sheets. We can use it for fee records, and also if we talk about its use at home, we can use it for the grocery list. Creativity skills. Design a colorful mini chart poster using MS Excel. अब अगर आपने मिनी चार्ट बनाना है MS Excel को यूज करते हुए, तो उसमें आपने दो चीजों को फॉलो करना है. Create a small table in Excel showing the marks of 3 subjects. अब आपने 3 सब्जेक्ट्स एंटर करने हैं, उसमें 3 आपके स्टूडेंट्स होंगे और आपने हर स्टूडेंट को कोई ना कोई मार्क्स एलोकेट करने हैं. अप्लाई सुटेबल फॉर्मेटिंग एंड कन्वर्ट द डेटा इनटू कॉलम चार्ट. और फिर उसी टेबल के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग करनी है, जिसमें आपने अलाइनमेंट देखनी है, आपने बॉर्डर्स अप्लाई करना है, आपने जो आपका हेडर है उसको बोल्ड करना है, और फिर आपने उसी टेबल को यूज करते हुए आपने कॉलम चार्ट क्रिएट करना है. प्रोजेक्ट टाइम. Create a shopping list at least of 5 items in Excel and calculate the total using sum function. अब आपने कोई भी जो भी ग्रोसरी के आइटम्स आप घर में यूज करते हैं, या जब आप लास्ट टाइम ग्रोसरी गए थे आपने कुछ चीजें ली होंगी, उनमें से आपने 5 आइटम्स लिस्ट डाउन करने हैं. हर आइटम की आपने प्राइस लिखनी है और फिर एंड पे आपने सम का फंक्शन यूज करते हुए उन जो ग्रोसरी लिस्ट है आपकी, उसकी जो भी प्राइस है उसका सम करना है. प्रोजेक्ट 2. Prepare a school fee record for 3 students and calculate the balance. अब आपने स्कूल का फी रिकॉर्ड बनाना है, जिसमें आप 3 स्टूडेंट्स के नाम लेंगे, उनकी आपने फीस लिखनी है,
फिर आपने ज्यूम करना है कि उन्होंने कितना इसको पे किया होगा। फिर आपने एक और कॉलम बनाना है जो कि आपका बैलेंस का होगा। उसमें आप क्या कर रहे होंगे कि आपने फी में से उनकी जो पेड वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी बैलेंस वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपने ये अपना पूरा टास्क कंप्लीट करना है। एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन। अब आपने ये सोचना है कि वाई इज एक्सेल बेटर देन मैनुअल कैलकुलेशन फॉर शॉपिंग एंड फी रिकॉर्ड्स। अब अगर आपको पता है, जैसे कि हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है, कि एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली चीजों को कैलकुलेट करता है। आप सिर्फ सम का फंक्शन यूज करते हुए डिफरेंट वैल्यूज को सम कर सकते हैं, बजाय ये कि आप मैनुअली किसी कैलकुलेटर के थ्रू या पेपर के ऊपर लिख के उसको सम करें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू फॉर्मूलाज हेल्प रिड्यूस कैलकुलेशन मिस्टेक। अब फॉर्मूलाज जो है आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक को इस तरीके से रिड्यूस करते हैं कि जब आप मैनुअली कुछ कर रहे होते हैं या अपनी वैल्यूज कैलकुलेटर के ऊपर एंटर कर रहे होते हैं तो उसमें आप वैल्यूज को गलत एंटर कर सकते हैं या आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा जीरो लग सकता है, तो वो आपकी मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन जब आप वो एक्सेल के ऊपर कर रहे होते हैं तो आप सिंपली इज इक्वल टू लगा के आप फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें रेंज सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और आपके पास वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। और जस्ट इन केस अगर आपका फॉर्मूला गलत होता है तो आपका एक्सेल ऑटोमेटिकली आपको एक पॉपअप शो कराता है कि ये आपके फॉर्मूले में मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट करेंगे तो आपका जो है वो रिजल्ट शो होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस आर एंटर्ड इन सेल्स B2 D2, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज मार्क्स। अब अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के एंटर हुए हुए हैं सेल B2 से लेके D2 तक, तो आपने फॉर्मूला लिखना है कि आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपने इज इक्वल टू लगाना है, फिर आप एवरेज लिखेंगे, फिर आपने स्टार्टिंग ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद आप अपनी रेंज एंटर करेंगे B2 कॉलन D2 और आप अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आप उस जो मार्क्स हैं जो B2 से D2 तक एंटर हुए हुए हैं उनकी आप एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। थिंक एन आंसर, हाउ डज यूजिंग एक्सेल हेल्प अस वर्क नीटली एंड एक्यूरेटली। जब आप एक्सेल को यूज कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से आपको हेल्प आउट करता है कि आप अपना काम नीटली और एक्यूरेटली करें। अब आपने इसमें ये सोचना है कि जो चीजें आपने चैप्टर में पढ़ी हैं और एक्टिविटी जो आपने क्लास में की है उससे आपको क्या चीजें समझ आई हैं। एक तो आप नीटली आपके पास कॉलम्स और रोज गिवन होते हैं जिनके अंदर आप अपने कॉलम्स के नाम दे सकते हैं, हर कॉलम के अंदर उसका डेटा डाल सकते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग को यूज करते हुए अपने जो टेबल है उसको नीट बना सकते हैं। और एक्यूरेट डेटा जो है वो आपको बार बार जब आप डेटा जहां से एंटर कर रहे हैं वहां से देखकर आप उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकते हैं। Why is it important to check formulas before finalizing a worksheet? जब भी आप कोई वर्कशीट फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो आपको ये चेक करना होता है कि अगर आपने सम करना था किसी चीज का तो क्या आपने सम का फॉर्मूला लगाया है वहां पे या पे कोई और फॉर्मूला आपने यूज कर लिया है। अगर आपने कहीं एवरेज निकालना था तो क्या आपने एवरेज का फॉर्मूला यूज किया है। तो जब भी आप अपना काम फाइनलाइज कर रहे हो तो हमेशा उसको रीचेक करते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी क्या वो मीट हुई है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, How does using Excel responsibly help avoid mistakes in schoolwork? अब अगर आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है या मैथमेटिकल काम करना है या फिर अगर आपका प्रोजेक्ट है कि आपने कोई वर्कशीट क्रिएट करनी है तो उसमें आप रिस्पॉन्सिबली जो भी आपको जब आप डेटा एंटर करते हैं या कोई भी फॉर्मूला वगैरह एंटर करते हैं तो उसमें जो भी आपको पॉपअप शो होता है उसको आपने केयरफुली रीड करना है ताकि जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकें। एक्टिविटी वर्क, create a small table in Excel showing your weekly pocket money and display it using a column chart. अब आपने एक small table बनाना है Excel के अंदर जिसमें आपने अपनी weekly pocket money लिखनी है और फिर आपने उसको एक column chart के थ्रू शो करवाना है कि मंडे को आपको इतनी पॉकेट मनी मिली थी, ट्यूसडे को इतना था। इस तरीके से आपने सारे वीक के डेज के ऊपर आप जब डेटा एंटर करेंगे तो जो आपका कॉलम चार्ट होगा उसमें हर एक बार एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और साथ में जो आपका वाई एक्सिस होगा उसके ऊपर आपकी पॉकेट मनी की अमाउंट आ रही होगी। क्रिएट अ सिंपल मार्क्स टेबल इन एक्सेल फॉर 3 सब्जेक्ट्स। अब आपने एक सिंपल मार्क्स टेबल बनाना है एक्सेल के अंदर जिसमें आपने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। फिर आपने उसमें एक्टिविटी क्या परफॉर्म करनी है कि आपने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, सम का फंक्शन यूज करते हुए आपने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं एवरेज का फंक्शन यूज करते हुए। फिर आपने जो उस आपका टेबल है उसकी जो हेडिंग है उसको आपने बोल्ड फॉर्मेटिंग करनी है। एडजस्ट द कॉलम विड्थ टू मेक द टेबल नीट। फिर आपने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना है ताकि आप जो अपना जो टेबल है उसको नीट बना सके। विड्थ कैसे एडजस्ट हो सकती है, या तो आप कॉलम के ऊपर जब अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो एक डबल एरो काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती है, तो उसको आप जब लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आपका कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास जो इंटरसेक्शन होती है रो और कॉलम की लेफ्ट साइड के ऊपर वहां पे जब डबल क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी जो एक्सेल है वो सिलेक्ट हो जाती है।
जब आपकी पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है तो फिर आप किसी भी एक कॉलम को अगर ड्रैग करके एडजस्ट करते हैं तो आपके सारे कॉलम जो है वो इक्वल विड्थ के हो जाते हैं। ड्रॉ अ सिंपल एक्सेल वर्कशीट एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। अब आपने एक एक्सेल की वर्कशीट को ड्रॉ करना है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है कि उसमें रोज कौन से हैं, कॉलम कौन से होते हैं और हम सेल किसे कहते हैं। डिस्कशन। अब आपने ये चीजें क्लास में डिस्कस करनी है कि वाई फॉर्मूलाज आर इम्पोर्टेंट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज क्यों इम्पोर्टेंट है। वेयर चार्ट्स आर यूजफुल इन रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में चार्ट्स को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाउ एक्सेल सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट। एक्सेल किस तरीके से टाइम और एफर्ट को सेव करता है। तो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को इन डेप्थ स्टडी किया था। हमने रीजंस को डिस्कस किया जिसमें हमने ट्रू एंड फॉल्स देखे, हमने एमसीक्यूज देखे, हमने फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स को इन डिटेल डिस्कस किया, फिर हमने ये देखा कि आपने एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।